Hello, students. Good morning, everyone. I hope you got the idea about the mean terms, product of sum of products. Okay, now the last point that I'm going to cover is max term. So, hope you are getting it, everything. Okay, so I'm continuing with this video. Okay, I'm giving you concept of these max terms. Okay, so how you can identify the max terms and how you can able to write it. Okay, so see, these max terms are coming under the product of sum. So that's why max term is defined as the product. Okay, so that's why the product of sums are used for representation of these max terms. Okay, so it consists of n number of variables. Okay, so these variables are considered within the range that is 0 to 2 raised to n. Okay, now whenever we are going to these variables, okay, so these variables in standard sum terms represent a single row in truth table such that evaluating the expressions for that row. Okay, now a product of sum term is a group of sum terms. Okay, it is a combination of or terms and terms. Okay, so standard sum terms are known as max terms. Okay, each individual term in the standard POS form is called max term. Okay, याद रखिए for your understanding, each individual term in standard POS means product of sum form is called max term. Now I'm telling you with the help of truth table. So that's why here, as by example, you can define it. Okay, you can denote it that max term. Okay, as just I highlight this line. Okay, a capital M and I is used for representation. Okay, so here I have given you an example in the second one line that f is equal to summation of m, okay, in bracket. Okay, instead of I here, it is written in bracket 1 2 3 are the term. These are the max terms are represented. Or by another way you can represent it like this: f is equal to summation of pi. Okay, instead of m, some books are giving such type of notations. So that's why I must tell you here. So that's why there will be a capital M or there will be a pi value is written. Pi symbolic representation or notation may be used. Okay, so keep it in mind if you are utilizing different books, no problem. Okay, or if you refer any kind of websites, then also over that websites these things are noted like this. Okay, so that's why f is equal to sum of pi in bracket 1 to 3. Okay, this is the notation, or this way is used for definition or denotions of these max terms. Okay, now I will give you how you can write these max terms. So see, it is complementations of your mean terms. Okay, so that's why see how it is a complementation that I am giving you a proof. So in max term, each variable is complemented. Okay, in max term, each variable is complemented. If its value is assigned to 0, assigned to 1, okay, means if you say x is equal to 1. Okay, so that's why we will write it in the complemented form. So that's why I write here x, and x value is 1, so I write here as x is a complemented form. So that's why I write here as a x bar. Okay, so the meaning of, you got the meaning of the these lines: each variable is complemented if its value is assigned to 1. यानी अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करता हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में डिफाइन करूंगा. ओके, कब? जब उसका वैल्यू 1 रहेगा. एंड ईच वेरिएबल इज अनकॉम्प्लीमेंटेड इफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0. यानी अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू की जगह अभी y लेता हूं, सो दैट्स वाई y
I am saying y is equal to 0, so that's why I write here that declaration definitions as a y. ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर y को एज अ 0 अगर वैल्यू होगी तो y को y ही यहाँ पर डिफाइन करूंगा। तो देखिए मैंने सेंटेंस क्या कहा, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ मीन टर्म्स। ओके, मीन्स अगर वहां पर मीन टर्म्स में आप वहां पर x की वैल्यू यहाँ पर जीरो जीरो ले, x की वैल्यू अगर 1 लेते थे तो x को x ही लिखते थे, और y की वैल्यू अगर 0 लिखते थे तो y को वहां पर कॉम्प्लीमेंट लिखा करते थे। मैं वहां फिर से वो स्लाइड बता रहा हूँ आपको, जस्ट मैं रोलिंग कर रहा हूँ वो स्लाइड के ऊपर। सी, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर इस तरह का एग्जांपल दिया था मीन टर्म्स के लिए। सी, ओके, मीन टर्म्स में मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू अगर 0 है तो हम उसको डिफाइन करेंगे एज x बार और x बार। ओके, मैंने आपको लिख के भी दिया था। और y की अगर वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आपको उसे रिप्रेजेंट करना है एज अ y के द्वारा। ओके, दिस इज अबाउट द मीन टर्म्स। नाउ अगेन आई एम रोलिंग ओवर द मैक्स टर्म स्लाइड। सी, आ गया मैं मैक्स टर्म के स्लाइड के ऊपर। गेटिंग एवरीवन? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सो दैट्स व्हाई यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 है तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज x बार के द्वारा, और y की वैल्यू अगर 0 है तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y के द्वारा। चलिए मैं अभी यहाँ पर ट्रुथ टेबल बता रहा हूँ आपको फॉर 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स में। फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए मैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल बता रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई आप मैक्स टर्म्स यहाँ पर कैसे लोगे और बुलियन फंक्शन यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल ले रहा हूँ x और y नाम के। सो दैट्स व्हाई x और y नाम के वेरिएबल में यहाँ पर इस सेंटेंस के द्वारा उसको राइट आउट कर रहा हूँ। वो सेंटेंस के द्वारा राइट आउट करते समय मैं आपको ये टर्म दिखाने से पहले मैं ट्रुथ टेबल बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर इजीली जल्दी समझ में आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई सी, इफ आई से x वैल्यू इज 0 एंड y वैल्यू इज 0, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर मैक्स टर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ x प्लस वाई। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर के साइड में भी x प्लस वाई लिखा है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ओके, सभी को यहाँ पर सामने सभी क्लियर हो रहा है, सभी यहाँ पर स्लाइड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। सिमिलरली x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 0 है तो मैंने x को रिप्रेजेंट एज इट इज किया है, लेकिन y को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है एज अ y बार। ओके, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बार। सिमिलरली मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, y की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x बार प्लस वाई। ओके, सिमिलरली 1 1 के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x बार प्लस वाई बार। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस ट्रुथ टेबल। ओके, सो दैट्स वाई इस ट्रुथ टेबल के द्वारा मैंने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखी है। सो दैट्स वाई दीज आर माय मैक्स टर्म। सो दैट्स वाई यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम में यहाँ पर एवरी प्रोडक्ट टर्म, ओके, जो आप रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ, ओके सॉरी, यहाँ पर जो भी सम टर्म आप रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पर वह सम टर्म रिप्रेजेंट करते समय आपको यहाँ पर इस तरह का डिनोशंस यहाँ पर देना है। ओके, गेटिंग एवरीवन? सिमिलरली आपको यहाँ पर 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बता रहा हूँ। 3 वेरिएबल के ट्रुथ टेबल में मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल ले रहा हूँ x, y एंड z। ओके, उसके बुलियन फंक्शन में यहाँ पर मैक्स टर्म्स के लिए यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रुथ टेबल पका आपको यहाँ पर दिया है। सो दैट्स वाई x, y और z के लिए 0 0 0 अगर लिया तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z, और मैं उसका डेजिग्नेट कर रहा हूँ एज अ कैपिटल M0 के द्वारा। ओके, तो ये मेरा मैक्स टर्म रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्स टर्म यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई प्लस z। ओके, गेटिंग एवरीवन? In the same fashion, I am writing here 0 0 1 0 0 1 is written as x plus y plus z bar. Okay, and I am going to denote it as a, or designate it as a m1. Okay, similarly 0 1 0 is written as x plus y bar plus z. Okay, similarly 0 1 1 is x plus y bar plus z bar. Similarly 1 0 0 is x bar plus y plus z. Similarly 1 0 1 is x bar plus y plus z bar. 1 1 0 is x bar plus y bar plus z, and 1 1 1 is x bar plus y bar plus z bar. ओके, सो इस तरह मैंने उनको वैल्यू यहाँ पर डेजिग्नेट कर दिया M0 से लेकर M7। ओके, इस तरह ये ट्रुथ टेबल आपके सामने यहाँ पर
लिखा है। Okay, I hope everyone is getting this truth table. I hope you have got a clear idea about from this truth table. Okay, how I written it, that is max terms. Okay, अभी यहाँ पर ही मैक्स टर्म्स तो लिख लिए, ये इस तरह आपने यहाँ पर मिन टर्म्स और मैक्स टर्म भी ले लिए। मैक्स टर्म और मिन टर्म्स का डिनोशंस भी आपको पता है। ओके, तो अभी यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल समझना कोई यहाँ डिफिकल्ट बात नहीं रहेगी। See, just I am telling you here, first one example. Write the expressions for Boolean function f of abc is equal to summation of, यहाँ पर स्मॉल m लिखा है, देखिए समेशन ऑफ m, मैंने कैपिटल m नहीं लिखा है। ओके, सो दैट्स व्हाई इन ब्रैकेट आई रिटर्न 1 4 5 6 7 इन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ओके, सो दैट्स वाई, देखिए आपको इस तरह का शायद प्रॉब्लम अगर दिया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर एसओपी नहीं रहा तो यहाँ पर पीओएस रहेगा। एसओपी रहता था तो आपको अर्लियर वाला एग्जांपल था, लेकिन मैंने यहाँ पर एसओपी की जगह पीओएस कर दिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम कर दिया। तो अगर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम कर दिया है इस एग्जांपल में, तो आपको यहाँ पर एम को जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तो ये एम कैपिटल रहना चाहिए था। गेटिंग माई पॉइंट? याद रखना, मीन टर्म्स के लिए एम यहाँ पर स्मॉल रहता है और मैक्स टर्म्स के लिए एम यहाँ पर कैपिटल रहता है। तो यहाँ m की जगह पाई भी आ सकता है, कैपिटल M की जगह पाई भी आ सकता है, लेकिन स्मॉल m की जगह कैपिटल M नहीं आएगा, क्योंकि स्मॉल m मिन टर्म्स के लिए यूज होता है, कैपिटल M यहाँ पर मैक्स टर्म्स के लिए यूज होता है। याद रखो। तो देखिए आपको यहाँ पर मीन टर्म देके रखा है और आपको कहा है कि भाई ये मीन टर्म्स की यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट टर्म्स अवेलेबल हैं। ओके, आप यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट जो मीन टर्म्स है, यहाँ इसके लिए यहाँ पर आप स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म यहाँ पर फाइंड करो। तो अगर आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहा कि भाई यहाँ पर आपको मिन टर्म्स के लिए लो तो यानी मिन टर्म्स का ये टर्म छोड़ देना है आपको। यानी कैसा, मैंने यहाँ पर लिखा द मिन टर्म्स आर 1 4 5 6 7, यानी आपको इस टर्म्स के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है एक्सप्रेशन। आपको कौन से टर्म्स के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड करने की जरूरत है, जो आपको यहाँ पर मैक्स टर्म्स यहाँ पर चाहिए है। तो मैक्स टर्म्स यहाँ से आपको यहाँ पर से फाइंड करना पड़ेगा। जो टर्म्स यहाँ पर नहीं दी है वह टर्म्स आपको यहाँ पर चूज करना है। जो टर्म्स यहाँ पर नहीं दी है, यहाँ पर आपको कौन कौन सी टर्म नहीं लिखी है, 1 2 4 5 6 7 लिखी है, लेकिन ऐसी कौन सी टर्म है कि वो 7 के पहले है लेकिन वो यहाँ पर लिखी नहीं है। तो देखिए 7 से पहले यहाँ पर 0 नहीं लिखा था, 2 नहीं लिखा था और 3 नहीं लिखा था। So that's why these are the remaining terms. So I say these are the max terms. Getting the differentiations between the min terms and max term, how you can find the min terms and max term? Okay, देखो सबको समझ में आ रहा है। आई होप मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर क्लियर यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग दी है कि यहाँ पर m छोटा है तो m छोटा है, तो यहाँ पर आपको ये मिन टर्म्स में दी है, लेकिन आपको यहाँ पर कहा है कि पीओएस फॉर्म फाइंड करना है। पीओएस है ना, आपको मैक्स टर्म फाइंड करना है। तो ये तो मिन टर्म दिए हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम में क्या कहा है फाइंड करने के लिए, मैक्स टर्म फाइंड करने के लिए कहा है। तो मिन टर्म छोड़ दोगे ना, बराबर है ना, मिन टर्म हम छोड़ देंगे ना, तो इसलिए मैंने मिन टर्म्स यहाँ पर लिखे और मिन टर्म्स मैंने छोड़ दिए। और जहां यहाँ पर मैंने 7 टर्म्स तक यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ कि भी ट्रुथ टेबल यहाँ पर 7 टर्म तक है। सो दैट्स वाई अगर यहाँ 7 टर्म तक अगर ट्रुथ टेबल है तो रिमेनिंग जो टर्म्स है मैं यहाँ पर ढूंढ के निकाला, तो यहाँ पर 0 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, इस वजह से ये टर्म्स में मुझे यहाँ मैक्स टर्म्स फाइंडिंग करना है। तो गेटिंग एवरीवन, कोई डाउट भाई कभी यहाँ तक किसी को? चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, वी कैन नाउ राइट मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। ओके, सो दैट्स व्हाई मैक्स टर्म्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ ऑफ एबीसी। ओके, एबीसी मैंने वेरिएबल लिए, इंस्टेड ऑफ एबीसी में एक्स वाई जेड भी ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पर टर्म डिफाइन किया कि भाई यहाँ पर ए बी सी जो मेरे प्रॉब्लम में दिया है उसी तरह मैंने यहाँ उसे टर्म लिया, एफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल एम। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने उसको यहाँ पर नामकरण कर दिया। जो m यहाँ पर स्मॉल था मैंने यहाँ पर उसको नामकरण में बोल दिया कि भाई नाउ इट इज अ कैपिटल m। m मीन्स मैक्स टर्म, तो मैक्स टर्म के लिए मुझे यहाँ पर 0 to 3 के लिए मैक्स टर्म लिखना है, या फिर समेशन ऑफ पाई
Okay, in bracket 0 2 3. Okay, both are same. Now getting everyone. चलिए अभी यहाँ पर ये 0 2 3 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 2 3 के लिए 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है M0, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है M2 और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है M3. सो 0 यानी M0, M2 और M3 की जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ. गेटिंग एवरीवन. सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर f ऑफ ABC इज इक्वल टू, तो 0 के लिए देखिए कौन सी टर्म लिखी है. देखिए 0 के लिए टर्म लिखा है यहाँ पर M0 के लिए x प्लस वाई प्लस जेड. एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a प्लस b प्लस c. गेटिंग एवरीवन. सिमिलरली M2 लिखा है यहाँ पर x प्लस वाई बार प्लस जेड. ओके, यानी यहाँ x यहाँ पर x यहाँ पर विदाउट बार है, सो दैट्स वाई a प्लस बी बार प्लस सी. देखिए इसका इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पर लिखा, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड मैंने M2 को यहाँ ए बी सी में लिखा है. सिमिलरली M3 यहाँ पर है x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, तो मैंने यहाँ पर लिखा a प्लस बी बार प्लस सी बार. ओके, अभी यहाँ पर ये तीनों टर्म लिख दिए, लेकिन ये तीनों टर्म यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ सम है. सो दैट्स व्हाई ये प्रोडक्ट रहेगा, और ये प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स यहाँ पर आपको लिख के दिया, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी और a प्लस बी बार प्लस सी बार. इस तरह आपको यहाँ पर ये मैक्स टर्म सामने आपके रखे हैं. तो दिस इज योर आंसर. ओके, गेटिंग एवरीवन. तो इस तरह आपको यहाँ पर ये आंसर फाइंड करना है. ओके, सो इस तरह के प्रॉब्लम शायद एमसीक्यू में अगर आए तो आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल माइंड में लाना है, और ट्रुथ टेबल के द्वारा आपको यहाँ पर ये जस्ट वेरी इजी फाइंडिंग है, नॉट मच डिफिकल्ट. आपको ज्यादा पेन लेने की भी जरूरत नहीं है. ओके, सिंपल सीधा सा एग्जाम्पल रहेगा. ओके, आप उसको यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकोगे. ओके, चलिए अभी यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेता हूँ. अभी रिवर्ट टेक्नोलॉजी में लेता हूँ. अभी रिवर्ट टेक्नोलॉजी में यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा मैं इसको स्लाइड को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ. सी दिख रहा है अभी सबको? हाँ. नाउ एग्जाम्पल 2 यहाँ पर दिया है एफ ऑफ इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर एक्सप्रेशन दी है एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार प्लस एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई इंटू जेड. ओके, प्लस एक्स एक्स वाई बार प्लस जेड. ओके, तो अभी आपको यहाँ पर इस तरह का यह एक्सप्रेशन रहेगा. ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पर उसको अगर अर्लियर कंपेयर करोगे, तो यहाँ ये अगर आपको यहाँ किसी को समझ में आया तो देखिए एक्स इंटू वाई इंटू जेड यहाँ पर प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट है. ओके, और प्रोडक्ट ऑफ सम. ओके, तो यहाँ पर ऊपर की जो एक्सप्रेशन थी ये प्रोडक्ट ऑफ सम की थी, और यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन है. तो यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन है, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर उसको जस्ट फाइंडिंग किया है. ओके, तो देखिए ध्यान में रखना बराबर प्रॉपरली. ओके, तो इस तरह के अगर एक्सप्रेशन दी है तो मैं यहाँ पर उसको यहाँ इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द ट्रूथ टेबल लिख रहा हूँ. ओके, एक्स बार वाई बार जेड बार, तो M0 यहाँ पर रहेगा, एक्स बार वाई जेड बार ये रहेगा M2, एक्स बार वाई जेड यहाँ पर ये रहेगा M3, और एक्स वाई बार जेड रहेगा M5. ओके, तो मैंने यहाँ पर यह लिखा है f इज इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट 0 to 3 5, या f इज इक्वल टू समेशन ऑफ पाई इन ब्रैकेट 0 to 3 5. ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल भले भी आपको यहाँ पर इस तरह का सम ऑफ प्रोडक्ट का दिया है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव गिवन इट. ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये एक्सप्रेशन थोड़ा रिवर्ट चाहिए था. ओके, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई होप यू आर द स्मार्ट स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड वेरी इजीली. Okay, so that's why I hope this will be getting everyone. Okay, so बहुत बढ़िया. आपको यहाँ पर ये समझा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो देखिए इस तरह का आप मैक्स टर्म्स यहाँ पर आपके यहाँ पर फाइंड कर सकते हो. ओके, सो जस्ट वेरीफाई, यूज द ट्रूथ टेबल के द्वारा यहाँ पर आपको लेना है. ओके, सो ठीक है फिर. ओके, हाँ, कोई अगर किसी को डाउट होगा या इस क्वेश्चन में ही डाउट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रूथ टेबल आपको इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड में दिया है. ओके, सो दैट्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड में यहाँ पर ये टर्म रहेगा. ओके, सो दैट्स वाई डोंट बॉदर अबाउट इट, बट आपको यहाँ पर समझाना जरूरी था. सो दैट्स वाई आई होप यू गॉट इट आइडिया. ओके, थैंक यू. हाँ,
अभी एक डिफरेंस भी देख लेते हैं एसओपी और पीओएस में। ओके सी, यहाँ इस स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए डिफरेंस दिया है। सी, फर्स्ट पॉइंट इन एसओपी इज way of representing boolean expression as sum of product term। ओके तो यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म आपको यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए शो आउट किया है। ओके अगर आप पीओएस की बात करोगे, अगेन अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बुलियन एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। ओके so that's why sum of product or product of sum term representing point of view, here the first point is given। देन एसओपी यूजेस मीन टर्म्स, ध्यान में रखना अभी यहाँ पर आपको एमसीक्यू में पॉइंट्स रहेंगे। ओके एसओपी यूजेस मीन टर्म्स, पीओएस यूजेस मैक्स टर्म्स। ओके तो एसओपी में 100% आपका यहाँ पर मीन टर्म्स आएगा। तो मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ बुलियन वेरिएबल आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और इन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। ओके तो यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान में रखना है मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ बुलियन वेरिएबल either in normal form or in complemented form। Similarly, POS uses max term. Max term is a sum of boolean okay variable either in normal form or in complemented form। Okay. Similarly, in terms sum of product, it is a sum of min terms. Min terms are represented as small m. Okay, and it is a product of max term. Max terms are represented as capital M। Okay। सिमिलरली आपको यहाँ पर ने दिया है एसओपी इज फॉर्म बाय कंसिडरिंग ऑल द मीन टर्म ओके हुज आउटपुट इज हाई। ओके एसओपी इज फॉर्म बाय कंसिडरिंग ऑल द मीन टर्म हुज आउटपुट इज हाई, लेकिन पीओएस में ऐसा नहीं दिया है। पीओएस इज फॉर्म बाय कंसिडरिंग ऑल मैक्स टर्म हुज आउटपुट इज लो। ओके याद रखिए यहाँ पर एक बिगेस्ट डिफरेंस है। सो दैट्स वाई ये एक आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन भी रहेगा। ओके एसओपी इज फॉर्म बाय कंसीडरिंग ऑल मिन टर्म हुज आउटपुट इज हाई। तो आपको हाई बोल सकते हैं, लो बोल सकते हैं, डोंट केयर बोल सकते हैं। ओके तो इस तरह आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर पीओएस में पीओएस इज फॉर्म बाय कंसीडरिंग all the max term whose output is low। Okay, similarly while the writing min term for SOP, input with value 1 is considered as the variable itself, right? याद रखिए while writing min terms for SOP, input with value 1 is considered okay as the variable itself, and input with value 0 is considered as complement of the input। Okay, very good। Similarly, while writing max terms for POS, input with value 1 is considered as complement, okay, as the complement, and the input with value 0 is considered as the variable itself। Very good। okay, ये biggest यहाँ पर का difference रहेगा SOP और POS में, यानी मीन और मैक्स टर्म्स में। so that's why आपको यह difference बहुत काम आएगा। okay, I hope both comparison you understood very clearly। okay so see, remember it everything, okay, and keep it in your pocket। okay keep it in your diary। okay if you are writing the notes, okay, from that why you're watching this video, you prepare your notes as per the exam point of view। so very good, thank you। okay।